एवरीवन, आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ और आशा करते हैं माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। एंड नाउ जस्ट सी द concept of ratio. Now see what is ratio. Ratio, it is represented by two dots like this, and it is read as ratio R is 2. Now see, if 2:3 is written, then we can write it in the form of 2/3. That is, ratio is just like fraction. I hope you have understood. Now just see the example of real life. If I say I am math teacher and you are a student, if I say whose math will be better, then of course my math will be better. If I say I am a math teacher and there is a doggy, then whose math will be better? Then the math teacher and doggy can never be compared. It means ratio is the comparison of same quantities. Now just see the questions based on the ratio. Now question number 1, express following ratios in simplest form. देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहला क्या है, 1/6 रेशियो 1/9। बी पार्ट है 4 होल 1/2 रेशियो 1 होल 1/8। सी ये क्या है, 1/5 रेशियो 1/10 रेशियो 1/15। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए पार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/6 रेशियो 1/9, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/6 और 1/9। देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। अब देखिए हमारा पहला टर्म क्या है 1, फोर्थ टर्म क्या है 9, फिर सेकेंड टर्म क्या है 6, थर्ड टर्म क्या है 1. Now see, it will be 9/6. Now reduce in simplest form. 3 3 is 9, 3 2 is 6. It will be 3/2. That is 3:2. Now just see the B part. See, 4 whole 1/2 ratio 1 whole 1/8. घबराने कोई ज़रूरत नहीं. These are given in mixed fraction. Now first of all we will change it in improper fraction. 4 2 is 8, 8 1 9, 9/2 ratio 9/8. Now it will be 9/2, 9/8. Then we will solve first into fourth, that is 9 into 8. Second into third, 2 into 9. 9 and 9 will be cancelled. 2 1 is 2, 2 4 is 8. Now it is 4/1. Required ratio will be 4:1. Now just see the C part. ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने कोई ज़रूरत नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1/5, 1/10, 1/15। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक LCM of 5, 10, 15. It will be 30. Now see 30. Now we will divide 30 by 5. It will be 6. Then 30 by 3. It will be 3. Then 30 by 15. डिनोमिनेटर को गोली मार देंगे। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 6:3:2. आई होप you have understood it. Anybody having any confusion, then most welcome and write in comment section. Now just see the question number 2. Now how we will find the ratios when units are different. So it's very simple. Means first of all we will make units same. Now just see question number 2. मैं लिख रहा हूँ फाइंड रेशियो ऑफ, पहला पार्ट है ₹5 to 50 पैसे। बी पार्ट है 3 किलोमीटर
टू 300 मीटर। सी पार्ट है 15 मिनट्स टू 1 आवर। देखिए बहुत ही आसान। यहाँ पर ए पार्ट का सोल्यूशन देखिए, ये क्या है, ₹5 to 50 पैसे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ₹5 रेशियो 50 पैसे। देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ₹5/50 पैसे। नाउ we will make unit same. Now 1 rupee equals to 100 paise. Therefore we will change rupee into paise. It will be 5 into 100 paise divided by 50 पैसे। अब देखो बेटा, पैसे पैसे कैंसिल्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 500/50। ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 10। इट विल बी 10/1। रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 10:1. Okay, now just see the solution of B part. Now it is 3 किलोमीटर to 300 मीटर। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 300 मीटर। सी units are different, we will make unit same, that is 1 kilometer equals to 1000 meter. Now we will change किलोमीटर into मीटर। 3 into 1000, देखिए बहुत ही आसान, ये हो जाएगा मीटर और यहाँ पर ये 300 मीटर। मीटर एंड मीटर विल बी कैंसिल्ड, इट विल बी 3000 डिवाइडेड बाई 300। 2 zeros कैंसिल, ये हो जाएगा 30/3। इट विल बी 1 जा 10 जा। रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 10:1। देखिए बहुत ही आसान। सी पार्ट, इसमें क्या करना, 15 मिनट्स divided by 1 hour. Now we will change r into minutes. 1 hour equal to how many minutes, 60 minutes. So 15 minutes divided by 60 minutes. Minutes and minutes will get cancelled. Now 50/60, 15 1 ja 4 ja 1/4, that is required ratio is 1:4. Now see the last question based on the ratio. Question number 3 means we have to find the ratio of following. Just wait, I am writing on the board. Now see question number 3. Question number 3, A part. If A ratio B equals to 5/8 and B ratio C equals to 8 ratio B is to C is 8:9. Okay, then find A ratio C. B पार्ट देखो इसका, if A ratio B equals to 5/8 and B ratio C equals to 18/25, then we have to find A ratio B ratio C. तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2A equals to 3B equals to 5C, then find A ratio B ratio C. देखिए बहुत ही आसान। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। देखिए A रेशियो B 5:8 है। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, A/B इक्वल्स टू 5/8। इसी तरह B रेशियो C कितना है, 8:9। हम क्या लिखेंगे, B/C इक्वल्स टू 8/9। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, A रेशियो C, डैट इज A/C फाइंड करना। अब देखिए अगर हम A/B इंटू B/C करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A/C। अब देखो A/B मल्टीप्लाइड बाई B/C डैट इज 5/8 इंटू B/C, ये कितना है 8 B/C देखो कितना है 8/9। देखो
8 and 8 will be cancelled, b and b will be cancelled, a upon c equals to 5/9. So a ratio c equals to 5:9. देखिए, अब देखिए बी पार्ट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए अपान बी हम क्या लिखेंगे 5/8, देन बी अपान सी, यहाँ पर हमारा क्या है बी अपान सी क्या है 18/25। अब हमें फाइंड क्या करना, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए बी यहाँ पर दो जगह है, तो बी को हम क्या करेंगे सेम करेंगे। फॉर मेकिंग बी सेम वी विल टेक LCM। नाउ वी विल टेक LCM ऑफ 8 एंड 18 कितना आ जाएगा 72। अब देखिए 72 आया, 72 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 45/72। इसी तरह यहाँ पर देखो क्या है 72 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 72 को 18 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर हम 4 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72/100। अब देखिए b सेम हो गया ना, ये देखें b कितना हो गया, b हमारा 72 हो गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c, ये हो जाएगा 45/72 और ये 100। ओके, अब इसका एक मेथड और देख लीजिए। देखो जहाँ जैसे ये a अपान b है 5/5 रेशियो, देखो ऐसे सेकेंड मेथड देखिए a रेशियो b कितना है 5:8 और b रेशियो c कितना है, ये देखिए यहाँ पर 18:25। अब हमें b को सेम करना है तो हम क्या करेंगे LCM लेंगे। LCM अभी मैंने बताया LCM कितना आ जाएगा 72। अब देखिए 72 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9, हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 72 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब ये a रेशियो b 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45/72, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72। और यहाँ पर b रेशियो c कितना आ जाएगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 जा 72 और ये 100। देखिए सेम हो गया। देखिए यहाँ पर तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 45/72, ये दिस इज द आंसर। नाउ जस्ट सी द last part, and last part is very easy and such type of question means 101% these questions are asked in examination. Important question, these are generally asked in examination. Now see, ये बहुत ही आसान 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c इक्वल्स टू k। अब हम क्या लिखेंगे 2a इक्वल्स टू k, 3b इक्वल्स टू k, 5c इक्वल्स टू k। क्यों, क्योंकि all these are equal to k. Now a will be k/2, b will be k/3, c will be k/5. Now we have to find a ratio b ratio c. What is the value of a? k/2, b value k/3, c value k/5. Now we will take the LCM. इसका हम LCM लेंगे। LCM कितना आएगा 2 3 5 का LCM आएगा 30। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 के, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 के, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 के। अब देखो डिनोमिनेटर को गोली मार देना। अब हमारे पास बचा क्या a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 15 के रेशियो 10 के 6 के। नाउ के को भी हटा देंगे, then required ratio will be 15:10:6. This is the final answer. I hope you have understood. If anybody having any confusion, then just write in the comment section. And one humble request from my side, keep on watching my videos and support me.
and don't forget to like and subscribe. Thank you very much.